नमस्ते स्टूडेंट्स, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वालेकुम सलाम। वेलकम टू आवर केमिस्ट्री सेक्शन of +2 class. Today we will start also from the students request, from the student suggestions. We are today doing the JEE main exams questions of chapter number 1 of chemistry. So let's start the questions of chemistry from which are very important from the JEE point examination point of view. The first question is, now it's a question is consider separate solutions of 0.500 m of molar concentration of C2H5OH aqueous one, and also C2H5OH, then 0.100 molar concentration of Mg3PO4 phosphate ions aqueous solution, and then 0.250 molar solution of KBr, it is also aqueous solution, and it is given to you solution students 0.125 molar Na3PO4 aqueous solution at 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस पे सभी सॉल्यूशंस की ये कंसंट्रेशन दी हुई है, एंड वी व्हाट वी वांट टू फाइंड व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू, which statement is true if all salt is strong electrolytes। अगर वो सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं तो कौन सी स्टेटमेंट इसकी ट्रू होगी। तो इन द सॉल्यूशन स्टूडेंट्स पाई इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द पाई इज इक्वल टू ICRT। I is a number of degree of dissociation ions. It is from osmotic pressure we know this relation. So we will calculate pi is equal to osmotic pressure in all the cases, and then we will see the difference. And for the first case 0.500 and pi for the C2H5OH, it is equal to I is in that case C2H5OH is 1 degree of dissociation 1, and C is concentration is 0.500, RT is as it is। तो आप जब मल्टीप्लाई करोगे 0.5001 0 को 1 के साथ, इतना ही रह जाएगा 0.500 RT for the C2H5OH। Then for pi for the for Mg3POH2, for this students is the Mg3 3 degree of dissociation for the magnesium, and phosphate means 2, 3 plus 2 5, so I for the Mg3POH for I is 5, so and its concentration is how much concentration 0.100 RT is same is, so multiply when 5 with this one, it is same also 0.500 RT। Then similarly pi for the next is a KBr, so it is value is KBr is K I for the degrees at dissociation I, K is 1, Br is 1, so 1 plus 1 2, so I put here 2, and C is a molar concentration, it is a 0.250 RT, so that also means 0.500 RT। Similarly for the last, and this pi for Na3PO4, and for this one Na3PO4, and Na3 is 3 more atoms are there, and PO4 is 1, so 3 plus 1 4, so 4 is our I in that case for finding the osmotic pressure। C is 0.125 RT as it is, so when 0.125 multiply by the 4, it will again the 0.500 RT। so which statement is true? Question is that now statement is true that all the you can say they have all the same vapor pressure, they all have सेम ऑस्मोटिक प्रेशर सभी का ये सेम होगा, क्योंकि हमने कैलकुलेट करके देख लिया है। तो ये था क्वेश्चन हमारा जो जेईई
एडवांस और मेन की प्रैक्टिस के लिए आपको आता है। वैसे पहले हम मेन के कर रहे हैं, तो ये मेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है द वेपर प्रेशर। देखना प्लीज, एक मिनट, जस्ट फॉर ए वाइल। और दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द वेपर प्रेशर of acetone. Yes students, the vapor pressure of acetone we are writing acetone at 20 degrees Celsius is 185 torricelli. For acetone 185 torricelli when 1.2 gram of non-volatile. So we are doing the JEE main questions, very important from the chapter number 1 solution. Non-volatile substance was dissolved in 100 ग्राम ऑफ एसीटोन। जब 100 ग्राम ऑफ एसीटोन में 20 डिग्री सेल्सियस पे उसको ऐड कर दिया, एंड इट्स वेपर प्रेशर कितना हो गया? इट्स वेपर प्रेशर वाज 183 टॉरिसली हो गया। टॉरिसली था यूनिट ऑफ द प्रेशर। द मोलर मास कितना हो गया? द मोलर मास इज हाउ मच? तो इन द सॉल्यूशन स्टूडेंट्स, we know from the relative lowering in vapor pressure, P1 is the vapor pressure of pure solvent, vapor pressure of solution P1, and P1 naught is the vapor pressure of pure solvent, which is equal to the mole fraction of the solute. And the mole fraction of the solute is to be calculated by number of moles of solute N2 over number of moles of solute and solvent and moles. When solvent and solute, when the solute is non-volatile, so then therefore only the number of moles of the solute exists, so N1 plus N2 becomes only N1. And now it is a P1 naught minus P1 over P1 naught is equal to N2. How to be N2 calculated? N2 is calculated weight of substance given divided by mass of substance, and N1 is wait for a while students, wait. Now this is N1, which is to be calculated W1 divided by M1. So from there we want to calculate the molar mass of the substance, and the molar mass of the substance is equal to M2 we want to calculate. So P1 naught is 185, pure solvent 185, P1 vapor pressure is 183, then P1 naught is 185, W2 is how much? 1.2 gram of non-volatile solute. M2 want to calculate. M1, it's a molar mass of acetone. Acetone formula you know, CH3 COCH3, and its molar mass is 58 over W1 is 100 gram of acetone, that is in the 100. So M2, how calculate M2? M2 take from this side 1.2 multiply by 58 over 100, multiply this 185 from this side, 185 minus 183, it is 2. And while using the calculator students, you can calculate the value of M2, which is comes out to be 64.38, near about of 64. That is the molar mass of the substance. So this is all about this particular question. Let's see the one more. Not one more, we will discuss many more questions in this section. You can enjoy this section of chemistry by subscribing our channel at the rate Future Saver Academy, so that you can get the information time to time. Now question number 3, 18 gram of glucose. 18 gram of glucose, the formula of glucose is C6, molecular formula C6H12O6. 18 gram is added. It is added to 178.2 gram of
वाटर, वाटर में ऐड कर दिया ये 18 ग्राम का। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन टॉरिसिली, टॉरिसिली में वेपर प्रेशर फॉर द सॉल्यूशन कितना होगा, फॉर द सॉल्यूशन हाउ मच, we want to find its vapor pressure. Now vapor pressure of water at 1 atmosphere, you know, at 1 atmosphere vapor pressure of water is equal to its standard value. So don't forget the standard value of vapor pressure of water, it is a 760 torrically, right? And W2 is the weight of the solute, that is solute is our water, so water is actually 18 gram. And the molar mass of the, it's a molar mass of the glucose, that 18 gram, not sorry water, 18 gram is the mass of the weight of the solute, which is equal to given 18 gram of glucose. And M2, it is the molecular mass of C6H12O6. To calculate 12O6, atomic mass of 12 carbon is 12, 12 6 is 72, 72 plus 12 84, and atomic mass of oxygen is 16, 16 6 is 96. When we adding all these, the molecular mass of the glucose becomes 180 gram per mole, right? Gram per mole. Then W1, it's a weight of the what? Weight of the solvent, which is given 178.2 gram. Then we will apply the operation. We will apply the operation P1 naught minus P1 over P1 naught is equal to the same value W2 over W1, M1 and M2. So from there we calculate the vapor pressure of the water, that is P1 we want to calculate. So P1 naught is vapor pressure of water, it is equal to 760 minus P1 over 760. Then W2 it is given 18, W1 it is 178.2, M1 molar mass, M1 is yes 18, molar mass of the, it is given water, and M2 is 180. So divide this 760 over 760 minus P1 over 760. So this is 18 1 the 18, 18 10 the 180, and this is 18 over 178 to 1782. After that point there is a decimal, there is a one digit after the decimal, to apply 10 here. So then the 10, this 10 cancel. So this P1 760 cancel, it is 1. So take this value 1 minus 18 over 1782 is equal to, take minus P1 over 760 to the right hand side. So take the 1782 LCM, 1782 multiplied by 1782 minus 18, it is a P1 over 760. So 1782 minus 18, it is equal to 12 minus 8, 4, and this is 7 minus 1, 6, and then 1764 over 1782 cross multiply by, this is 760 cross multiply, it is going to P1. So multiplying 1764 with 760 and divided by 17821, so this is the answer we can get. P1, the value of P1 is, it is a 5.64, approximately 752. This is the pressure of the solution in the torricelli form. Now the next question, very important question all these are. So you can only get the idea from these questions in this sections very carefully. Please don't disconnect the video, see the video at the end, so you can get the maximum advantages, maximum output from this section. Okay, so let's see the fourth question. Next question is fourth, and there is a freezing point of benzene. The freezing point of a benzene, the freezing point of a benzene decreases. Freezing point of benzene decreases. How much decreases? Decreases by 0.45 degree, right, Celsius,
when 0.2 gram of acetic acid, when 0.2 gram of acetic acid is added to 20 gram of benzene। जब 0.2 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड किस में ऐड करते हैं, 20 ग्राम ऑफ बेंजीन में ऐड करते हैं। इफ एसिटिक एसिड, आगे समझना है आपने, इफ एसिटिक एसिड एसोसिएट्स, इकट्ठा हो जाता है, एसोसिएट्स टू फॉर्म ए डाइमर, डाइमर बना देता है, दो कंपाउंड बना देता है, दो का एक कंपाउंड डाइमर इन बेंजीन, परसेंटेज एसोसिएशन। और इसके बाद क्या है, आपकी जो परसेंटेज एसोसिएशन है, परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड क्या कितनी होगी, परसेंटेज ऑफ एसिटिक एसिड हाउ मच होगी, जब KF उसका दिया हुआ है, जो फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट है बेंजीन के लिए दिया हुआ है 5.12 किलो Kelvin kilogram per mole. This is for the benzene, it is given. Yes students, let's see. So freezing point का जो solutions का आपका एक्सप्रेशन होता है वो याद रखना आपने, डेल्टा TF होता है आपका I डिग्री ऑफ डेसोसिएशन, KF फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय 1000 और W2 वेट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। So this is delta TF it is given to you, that is this is the freezing point 0.45, and I we want to calculate degree of association, and KF for the benzene is 5.12 1000 as it is, W2 is the weight of the solute, it is a 0.2 of acetic acid, 0.2, W1 weight of the solvent, it is 20 benzene, and M2 molar mass of the 60 acetic acid, molar mass acetic acid का CH3COH का जब आप निकालोगे तो 60 आएगा। तो from there we can calculate the I, तो I we will calculate like this, तो I will be 0.45 multiply by 20 multiply by 60, then this 20 and 60 multiply, and this term 5.12 here comes in the denominator, 1000 also in the denominator, then 0.2. So solving this equation, it is 0.527 comes out to be this. Now after that, how the acetic acid behave, acetic acid, two molecules of acetic acid behave like in the form of a dimer CH3COH, like two molecules like this, and degree of dissociation, अल्फा में से ये डेसोशिएट हो गया एक, अगर जो डेसोशिएट नहीं हुआ वो हो गया 1 माइनस अल्फा, और ये यहाँ पर हाफ डेसोशिएट हो गया, हाफ बच गया, ये अल्फा O2 बच गया। तो टोटल नंबर ऑफ आयंस या टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, वो होंगे 1 माइनस अल्फा इसके और अल्फा O2 इसके। इसको सॉल्व कर लो, अल्फा O2 में से अल्फा माइनस किया तो 1 माइनस अल्फा O2 बच गया आपका। अब आपके बाद आप आई हो डिग्री ऑफ जो एसोसिएशन होती है वो ऐसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, जितने टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ गए 1 माइनस अल्फा O2 ओवर 1 के साथ कर दो, तो ये आ गई आपकी आई की वैल्यू, ये 1 माइनस आई की वैल्यू कितनी है आपकी, ये पुट कर दो, आई आपका है 0.527। तो अल्फा O2 आप उधर ले जाओ दूसरी साइड, अल्फा O2 प्लस का हो गया, और आपको 1 से इधर ये 0.52 माइनस 527 माइनस कर दो, और इसमें से ये माइनस किया तो ये बच गया आपका 0.473, और 2 आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये अल्फा बच गया, अल्फा आपकी वैल्यू आ गई 0.946। अगर परसेंटेज में कैलकुलेट करो, इसको 100 में से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 100 में से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 946 पॉइंट, तो ये बन गया आपका ऐसा। तो देखते रहना स्टूडेंट्स, आप अभी आपको पता लग जाएगा कि कैसे हम कर रहे हैं इसको। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन जो आपका है नेक्स्ट, very important question from the basis of the solutions expressions. Some expressions are based on the relative lowering in vapor pressure, some from the freezing point, and some from the maybe also from the osmotic pressure. आगे वाला क्वेश्चन देखो आप, तो freezing point of a 4% aqueous solution
अच्छी तरह से देखना आप, एक्व सोल्यूशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू है आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए 12% एक्व सोल्यूशन के इक्वल ऑफ वाई का। देन इफ मॉलिक्यूलर वेट, आपका जो मॉलिक्यूलर वेट है एक्स का ए है, देन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाई का कितना होगा। तो सॉल्यूशन में हम देखेंगे ये एक्स का है, ये वाई का कैलकुलेट करना है। तो सॉल्यूशन में हम देखेंगे फ्रीजिंग पॉइंट मतलब क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट सेम है तो मींस उसका मोलैरिटी सेम है। तो मोलैरिटीज आर सेम बिकॉज फ्रीजिंग पॉइंट आर इक्वल। तो मोलैरिटी ऑफ एक्स कंपाउंड की मोलैरिटी ऑफ वाई एटम या कंपाउंड की इक्वल हो जाएगी। और मोलैरिटी आप कैसे कैलकुलेट करते हो, मोलैरिटी करते हो आप 4 मतलब नंबर ऑफ मोल्स जो एक्व सॉल्यूशन के हो गए, बाकी जो कम बचते हैं 100 बनाने के लिए 4/96 हो गया, और मल्टीप्लाई करते हो गए आप मॉलिक्यूलर मास ऑफ एक्स का, और मोलैरिटी कैलकुलेट करते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द मास ऑफ सॉल्वेंट। बाकी 96 ग्राम में मास ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व हुआ है, और मल्टीप्लाई बाय 1000। सिमिलरली वाई का कितना है 12, तो बाकी उसका आपका आ गया जो मास ऑफ सॉल्वेंट है, मास ऑफ सॉल्वेंट 88 हो गया, मास ऑफ वाई हो गया आपका 1000। ये 1000 दोनों साइड पे आप कैंसिल कर दो। अब यहां पर आपका वैल्यू पुट कर दो। मास ऑफ वाई कैलकुलेट करने के लिए ये इधर ले गए 12/88, ये 96 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, mx भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और आपका ये जो 4 है वो नीचे आ गया। अब m ऑफ y आपका कितना आएगा, ये 4 3 12 हो गया आपका। अब ये आ गया 3 × 96/88, और m ऑफ x का मॉलिक्यूलर वेट कितना है आपका a। तो जब इसको सॉल्व करोगे आप कैलकुलेटर की मदद से, तो ये बन जाएगा 3.27, और a लग गया ये, और ऐसे बोल सकते हो आप 3a। तो मॉलिक्यूलर मास y का कितना आ जाएगा, a के x के मॉलिक्यूल के ज्यादा 3 टाइम्स आ गया ये। अब आगे देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है, एंजॉय करो आप जरूर, बहुत सारे क्वेश्चन आप ये एक 1.5 मिनट में आपने जेई के मेन एग्जाम में कंप्लीट करने हैं। तो आगे आपका क्वेश्चन आ गया है जो आपने समझना है, वहां पर है ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू है। द ऑस्मोटिक जो प्रेशर है ऑफ ए dilute solution of an ionic compound कौन सा है, XY। आयनिक कंपाउंड XY है इन वाटर में जो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर है इज 4 टाइम्स है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर 4 टाइम्स दैट ऑफ ए सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन से जिसकी 0.01 मोलर कंसंट्रेशन बेरियम क्लोराइड के कंपैरिजन है इन वाटर, ये वाटर में है। अब वाटर एसोसिएशन कंप्लीट हो गई, एसोसिएशन कंप्लीट है। डेसोसिएशन ऑफ द गिवन कंपाउंड, जो डेसोसिएशन है जो टूटता है मॉलिक्यूल, डेसोसिएशन ऑफ गिवन आयनिक कंपाउंड इन वाटर में हमने कंप्लीट करनी है। द कंसंट्रेशन ऑफ XY कितनी होगी इन सॉल्यूशन में XY की कंसंट्रेशन कितनी होगी। अब सॉल्यूशन के लिए आपको मालूम है जो पाई होता है आपका होता है ऑस्मोटिक प्रेशर का रिजल्ट I डिग्री डेसोसिएशन CRT, ये होता है रिलेशन। अब आपको मालूम है कि पाई जो XY का है वो 4 टाइम्स है पाई की वैल्यू किससे, बेरियम क्लोराइड से, ये आपको मालूम है बेरियम क्लोराइड का ये कंपाउंड है इसके 4 टाइम्स होता है। अब जो डिग्री डेसोसिएशन है X और Y ये 2 हैं, एक Y 2 बन गए ये, और डिग्री ऑफ डेसोसिएशन जो BaCl2 की है वो 3 है, वो दिख रही है, एक बेरियम है और क्लोरीन कितना है 2 और 1 3 बन गए। तो यहां पर आपकी जो कंसंट्रेशन आएगी
इससे अकॉर्डिंग। तो पाई एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई, ये यहाँ पर आ गया 2 सी एक्स वाई। आर टी दोनों साइड पे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों का कैंसिल होगा। ये बच गया आपका 3, ये आई आ गया 3। सी कितनी है इसकी कंसंट्रेशन, वो 4 टाइम्स है, 4 मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन जो है वो है बेरियम क्लोराइड की, वो गिवन है 0.01। तो यहां इसको सॉल्व करेंगे हम। सी एक्स वाई कितना आएगा आपका 3 4 द 12 0.01 ओवर 2 नीचे आ गया, 2 1 द 2 2 6 द 12। अब कंसंट्रेशन जो आएगी आपकी वो मल्टीप्लाई करके 6 इंटू 10⁻⁴, ये पॉइंट के बाद 2 डेसिमल 2 डिजिट्स लगे हुए हैं, 2 डिजिट्स की जो 0 ओवर में लगेंगी वो ऊपर जाके 10⁻⁻² हो जाएगी। ये कंसंट्रेशन सी की आ गई। ये आपका न्यूमेरिकल था। अब इसके बाद बहुत अच्छा न्यूमेरिकल आने आ रहा, जो मेन आपके जेई एग्जाम में बच्चे जा रहे हैं, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये न्यूमेरिकल्स आएगा। ये देखो, एक सॉल्यूशन है, स्टूडेंट्स देखना अच्छी तरह से। सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 0.6 ग्राम ऑफ यूरिया, और यूरिया का जो मोलर मास है वो 60 ग्राम पर मोल दिया हुआ है, ये यूरिया का मोलर मास है। एंड आगे है 1.8 ग्राम ऑफ जो ग्लूकोज है आपका, उसका मोलिकुलर मास है 180 ग्राम पर मोल, जो है ग्लूकोज का। वो दोनों ही इन 100 ml ऑफ वाटर में लिखे हुए, वाटर के 100 ml में से सॉल्यूशन में से लिखे हुए हैं। एट टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस का। ऑस्मोटिक प्रेशर, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ऑफ द सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, देखना आप, इज आर कितना होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा ये कैलकुलेट करना है। और आर आपको गिवन है 0.08206 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, ये आपको कैलकुलेट करना है। अब आपको पाई का रिजल्ट पता है ना, CRT होता है। सी कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो मोलैरिटी होती है हमारी, वो कैलकुलेट करते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी सॉल्यूशंस के, वो हम कैलकुलेट करेंगे पहले नंबर ऑफ मोल्स, नंबर वेट इन ग्राम 0.6 फॉर द यूरिया डिवाइडेड इस मोलर मास, प्लस दूसरा कर देंगे आप ग्लूकोज का, ये ग्लूकोज के कितने हैं उसका 0.18 और डिवाइडेड कर देंगे उसका मोलरवार 180, और डिवाइडेड बाय कितने में से हैं, ये कितने में से है, ये दिया है 100 ml। 100 ml के आपको जब इसको 1000 के साथ डिवाइड करोगे ना 100 ml को लीटर में, तो वो आ जाएगा 0.1, और आर आपका है 0.082, ये पुट हो गया। टी आपका जो टेम्परेचर है वो है 27 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में बदलने के लिए 27 + 2 73 कर दिया, तो ये बन गया 300। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे हम। 60 और 180 का एलसीएम ले लो, 60 और 180 का एलसीएम 60 के टेबल पे जाएगा, 61 द 60 63 द 180, ये आ गया 63 द 180 एलसीएम आ गया। और 60 को 180 के साथ डिनोमिनेटर को डिवाइड करोगे, 60 को 180 के साथ डिवाइड किया 3 आ गया, 3 को यहाँ पर 0.6 के साथ मल्टीप्लाई किया 1.8, और 180 को 180 के साथ डिवाइड किया 1 आ गया, 1 ऐड होके आ गया 0.18, डिवाइडेड है 0.1 और मल्टीप्लाई आपका 0.082 मल्टीप्लाई बाय 300। तो ये आपका पाई की वैल्यू आ गई, इसको ऐड कर दो। इसको ऐड करने के बाद देखोगे आप 1.80 लगा दो आप 0.18, तो ये बन गया आपका 1.98 ओवर 180, और ये आपका जो चेंज होके 0.1 ओवर 1 है, ये 1 ओवर 0.1 हो जाएगा। इसको लगा दोगे आप 0.008 300, और जब इसको सॉल्व कर दोगे मल्टीप्लाई करके और नीचे वाली टर्म से डिवाइड कर दोगे, तो इसका आंसर आप निकाल लेना है, एटमॉस्फेयर में आ जाएगा 4.92 एटमॉस्फेयर। दिस इज द वैल्यू फॉर द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम आएगी तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर प्लीज जरूर कुछ ना कुछ आप पूछ सकते हो कि कैसे क्वेश्चन करने हैं, या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको जरूर बताया जाएगा नेक्स्ट आने वाले वीडियो में। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, डोंट टेक दैट वरी,
तो you have to be take care of these things that all the questions can be clear to you one by one. अगला क्वेश्चन है 1 ग्राम आपका नॉन वॉलेटाइल है, नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन वॉलेटाइल भी है जिसके वेपर नहीं बनते, और नॉन वॉलेटाइल सल्यूट है, सल्यूट इज डिजॉल्व, वो डिजॉल्व किया हुआ है किसमें 100 ग्राम ऑफ टू डिफरेंट सॉल्यूशन, डिफरेंट सॉल्वेंट में से वो डिजॉल्व किया हुआ है ए एंड बी, हुज जिसका इबुलिस्कोपिक कांस्टेंट ए एंड बी का वो दिया हुआ है ए एंड बी, इबुलिस्कोपिक कांस्टेंट्स आर, उसके इबुलिस्कोपिक कांस्टेंट्स कौन से हैं, आर इन द रेशियो 1:5, तो उनसे रेशियो कौन सी है आपकी 1:5। कैलकुलेट क्या करना है, द रेशियो ऑफ द एलिवेशन, द रेशियो ऑफ देयर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की रेशियो हमने कैलकुलेट करनी है इस सॉल्यूशन में से। तो आपको मालूम होना चाहिए जो डेल्टा टी बी है, एलिवेशन में बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन होता है, एक्सप्रेशन होता है, सॉरी, डेल्टा टी बी आपको के बी इंटू एम, तो आपको डेल्टा टी जो बी है ये बन गया, तो यहां पर जब ए के लिए लगाओगे तो डेल्टा टी बी ए का हो गया ये, और आपका ये बन गया डेल्टा टी बी बी का, तो ये ऐसे ही बन गया ये के बी, क्योंकि नॉन वॉलेटाइल जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस है ना, उसकी जो मोलैरिटी है एम ए और एम बी वो सेम होगी, जो एम होगा दोनों के लिए ए और बी के लिए सेम होने के कारण ये कैंसिल हो जाएगा, तो के बी ऑफ ए बच गया और आपका के बी ऑफ बी आ गया। अब के बी और के बी ए और ए बी की जो इबुलिस्कोपिक कांस्टेंट की रेशियो है वो गिवन है आपको 1/5, ये 1/5 है, तो यहाँ पर आपका डेल्टा टी बी ए और चेंज इन एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी का कितना आ गया 1/5, उसकी सेम रेशियो आ गई। अब इसका आगे वाला क्वेश्चन देखना है आपने, क्वेश्चन नंबर 9, यहां पर है एलिवेशन, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट फॉर स्टूडेंट्स 1 मोलर सॉल्यूशन, फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज 2 K। आगे है द डिप्रेशन, इसमें आगे दिया हुआ है द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, जो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 2 मोलर सॉल्यूशन, 2 मोलर सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज इन द सेम सॉल्वेंट, सेम सॉल्वेंट के ग्लूकोज का भी जो है फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट वो भी कितना है 2K। क्वेश्चन क्या है, द रिलेशन बिटवीन, आपने फाइंड आउट करना है द रिलेशन बिटवीन KB एंड KF, KB एंड KF में रिलेशन क्या होगा, ये क्वेश्चन है आपका JEE मेन का क्वेश्चन। तो देखना अच्छी तरह से, आप दोनों ही वैल्यू लिख लो, डेल्टा टी बी की वैल्यू क्या होती है KB इंटू एम, और यहां पर आप डेल्टा TF लिख लोगे, वो होती है आपकी KF मल्टीप्लाई बाय एम। अब आप इसको डिवाइड कर दो, यहां मैं लिख रहा हूं डेल्टा TB ओवर डिवाइड कर दो डेल्टा TF, तो डेल्टा TB की वैल्यू कितनी है KB इंटू एम, और दूसरी कितनी वैल्यू है KF इंटू एम, MM आपका कैंसिल हो गया। इसके बाद आप कैंसिल भी कर सकते हो, नहीं तो जो मोलैरिटी की वैल्यू है वो पहले के लिए 1 मोलर सॉल्यूशन ग्लूकोज के लिए 1 मोलर सॉल्यूशन के लिए 1 है, और दूसरे के लिए कितनी है, कैंसिल नहीं करना, दूसरे के लिए जो M की वैल्यू है वो आपकी है 2, ये आपको गिवन है 2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज दी 2 केल्विन। तो डेल्टा TB, ये डेल्टा TB और डेल्टा TF आपका कितना है, ये देखो आप, डेल्टा TB डिप्रेशन कांस्टेंट, डिप्रेशन में फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट कितना है, यह है आपको ये 2 है, और डेल्टा TF देखो ना, एलिवेशन में बॉइलिंग पॉइंट 1 मोलर सॉल्यूशन का है 2K, ये 2K केल्विन लिख दिया, और डिप्रेशन में फ्रीजिंग पॉइंट है 2 मोलर सॉल्यूशन ग्लूकोज,
फॉर द सेम सॉल्वेंट वो भी कितना है 2K, ये डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट 2 हो गया। आपका आगे क्या आ गया KB/KF, और ये आपकी मोलैरिटी आ गई 1/2। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 चल रहा है और 2 कैंसिल हो गया। यहां पर आप KB कैसे कैलकुलेट करोगे, ये 2 इधर रह जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई KF इधर रह गए, तो KB आपका कितना आ गया 2 × KF आ गया। मतलब जो आपका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट है वो 2 टाइम्स आ गया डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट के ज्यादा। अब इसके बाद है हमारा क्वेश्चन आगे वाला, वो देखते हैं अभी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले दिनों में भी करेंगे आप, तो जरूर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन्होंने अभी तक दो स्टूडेंट्स हैव डिडंट सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड आल्सो आपने कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ ना कुछ बताया करो। ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत ਵਧੀਆ लगूगा यह क्वेश्चन समझ के। यू कैन अपीयर एंड नॉट अपीयर, यू कैन गेट द वेरी हैंडसम मार्क्स द JEE मेन एग्जाम्स। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following statements for which statement is true according to Henry law? Which statement is true according to Henry law? So I will write in the brief. The first is the value of KH increases. Henry constant की वैल्यू इंक्रीज करेगी विद नेचर ऑफ गैस। यस, नेचर ऑफ गैस के साथ वैल्यू ऑफ KH also increases, that is true. Question is which is not true? Which statement is not true? Sorry, it's not true. Question ये है। And second, higher the value of KH, higher the value of KH at a given pressure, at a given pressure, higher the value of KH, higher is the solubility, higher is the solubility। की solubility भी ज्यादा होगी, ये बात नहीं सही है, क्योंकि जो X होता है ना, solubility होती है वो होती है 1/KH × P प्रेशर। तो यहां पर अगर KH बढ़ेगा, अगर हेनरी जो हमारा KH है कांस्टेंट है ना, हेनरी कांस्टेंट जो बढ़ेगा तो ये solubility कम होगी। If KH increases then solubility decreases. That means higher the value of KH at a given pressure, there should be lower is the solubility. So there is a lower solubility lower, and so B is a statement which is not true. B is statement which is not true. I will discuss the third and fourth one also, that how they are true. The partial pressure of the gas is vapor pressure of the gas is the vapor phase is proportional to, जो पार्शियल प्रेशर होता है वेपर फेस का वो प्रोपोर्शनल होता है किससे, टू मोल फ्रैक्शन। ये भी सही है, मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है, हमें मालूम है, ये हमने चैप्टर में ही पढ़ा था और सभी हम जानते हैं कि मोल प्रेशर के इक्वल होता है। और सी के बाद मैं डी डिस्कस कर रहा हूं। डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट KH, अलग अलग गैसेस की हेनरी कांस्टेंट डिफरेंट होती है वैल्यू एट द सेम टेम्परेचर। ये भी सही है, सेम टेम्परेचर के ऊपर अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग KH की वैल्यू होती है। तो हमारा ऑप्शन जो सही नहीं है वो ये है कि हायर द वैल्यू KH देयर इज लोअर द वैल्यू solubility, दैट दिस इज द वेस्ट। तो एंजॉय द डे स्टूडेंट्स, आपने अच्छी तरह से समझा होगा, आगे भी हम बताते रहेंगे आपको। तब तक के लिए स्टूडेंट्स हैव ए नाइस डे, टेक केयर।